Today we will start 2nd May. Today we will start the parallel lines. Parallel lines we have already discussed definitions, some axioms. What is parallel lines? We have already discussed in previous lecture. Now today we will start related theorem of the parallel lines. Related theorem. Now theorem 1. Theorem 1. If a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then alternate angle of each pair of interior angles are equal. This is the theorem. If a transversal intersect two parallel lines, then alternate angle of each pair of interior angles are equal. This is the theorem. What is transversal? What is parallel line? What is alternate angle? We have already discussed in previous videos. Those students who see this lecture, that student at first see the previous lecture, because previous lecture and this lecture related to each other. अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, जिस तरह से हमने पैरेलल लाइन शुरू किया था कल, तो आपको ये बात समझने में काफ़ी दिक्कत होगी. तो एट फर्स्ट यू सी द प्रीवियस लेक्चर, देन यू सी दिस लेक्चर. नाउ दिस इज द थियरम. थियरम इज दैट इफ a transversal intersect two parallel lines, then the alternate angles of each pair of interior angles are equal. Related to this is proof. At first you draw the figure. This is parallel lines and this is transversal. T. This is AB and this is CD. This is transversal line. AB, CD are parallel lines. And now we start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now here alternate angle. सबसे पहले गिवन क्या दिया है ये लिखते हैं. गिवन AB parallel to CD. AB parallel to CD.
and transversal T cuts AB cuts AB and CD, forming two pair of alternate interior angles. Forming two pair of alternate interior angles. कौन कौन सा है? अल्टरनेट 3, 5, 4, 6, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 and angle 6. This is the interior angle, alternate interior angles. ये पेयर मिल रहा है. दिस टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. ये प्रूफ करना है. AB parallel to CD, this is given a transversal, this line is transversal, cut this parallel lines. इस तरह से कि एंगल बन रहा है 3, 5, 4, 6. ये एंगल बना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दिस एंगल इज नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हमें प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. we have angle 3 equal to angle 1. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1. कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. vertically opposite angle 3 equal to angle 4. What is vertically opposite angle? We have already discussed in previous lecture, and we have proved a theorem related to this alternate interior vertically opposite angle. We have already discussed the theorem vertically opposite angle. At first you see that videos. Now here angle 3 equal to angle 1 and angle 1 equal to angle 5. कैसे? corresponding angles. Angle 1 equal to angle 5. Therefore this is equation 1 and this is equation 2. From 1 and 2, this is 3 equal to 1 and 1 equal to 5, means 3 equal to 5. First condition is proved. Now here again angle 2 equal to angle 4, vertically opposite angle, and angle 2 equal to angle 6. कैसे? corresponding angle. Therefore angle 4 equal to 6. This is proved. So now this theorem is very important because
This theorem is used directly in numericals and another theorems. If we prove another theorem, we have directly used this theorem. अगर हम आगे कोई थ्योरम प्रूफ करेंगे तो डायरेक्ट इस थ्योरम का यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम? यही थ्योरम कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम का डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में भी, सॉल्यूशन में भी, न्यूमेरिकल में भी, कहीं भी। दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ another theorem, this is another theorem. If a transversal intersect two parallel lines then each pair of consecutive interior angle interior angles are supplementary. Very important, this theorem. This theorem is very important. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary. This theorem is, we again say that if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary. इस थ्योरम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ईच कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स 180 के बराबर होते हैं। चलिए समझते हैं प्रूफ। This is the parallel lines. This is parallel lines and this is transversal. This is T, AB, CD. AB, CD. Here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. According to theorem, AB पैरेलल टू CD, ये दो लाइन पैरेलल है, कट बाय ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, ठीक है। तो ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर, यानी ये आमने सामने, ये अंदर, ये इंटीरियर है। व्हाट इज इंटीरियर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। दिस इज इंटीरियर 4, 5, 3, 6, दिस इज इंटीरियर। तो कह रहा है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स 180, यानी 4 + 5 = 180, 3 + 6 = 180, ऐसा होता है। दिस थियरम इज से दैट 4 + 5 = 180, 3 + 6 = 180।
नाउ प्रूफ गिवन एट फर्स्ट गिवन क्या गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी दिस इज गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड transversal T cuts AB and CD cuts AB and CD forming two pair of consecutive interior angle consecutive interior angle angle 3 angle 6 and angle 4 angle 5 this is consecutive interior angle टू प्रूफ क्या करना है टू प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 दैट इज सप्लीमेंट्री ये प्रूफ करना है चलिए प्रूफ करते हैं since ray T stand on line AB on line AB not T we have a name is here E and here is F this point is E and this point is F तो रे EF ये रे EF stand on line AB we have angle 3 plus angle 4 इक्वल टू 180 कैसे लीनियर पेयर से लीनियर पेयर देखिए 3 + 4 ये लाइन EF इस AB पे स्टैंड है ये स्टैंड है AB पे स्टैंड है तो 3 + 4 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर ये एक एंगल है और ये एक एंगल है इन दोनों का सम किसी लाइन पे अगर कोई लाइन स्टैंड है तो ये दोनों का सम 180 के बराबर होता है लीनियर पेयर में ऐसा प्रूफ किया गया है दिस इज द थ्योरम ऑफ लीनियर पेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज लीनियर पेयर एंड थ्योरम ऑफ लीनियर पेयर angle 3 + 4 इक्वल टू 180 this is but angle 4 इक्वल टू angle 6 कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी पीछे जस्ट थ्योरम हमने प्रूफ किया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों अल्टरनेट है तो 4 6 के इक्वल है देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 फर्स्ट इज प्रूव्ड angle 3 plus angle 6 equal to 180 putting the value of 4
4 की जगह हम 6 लिख सकते हैं, तो ये 180 के बराबर है। तो पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। अगेन सिंस रे एफ ई, यहाँ पे ई एफ स्टैंड था, अब एफ ई स्टैंड ऑन सी डी, सी डी पे स्टैंड है, स्टैंड ऑन लाइन सी डी। ये जो एफ ई है वो सी डी पे स्टैंड है ना स्टैंड। ये दोनों एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। देयरफॉर एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। कैसे? लीनियर पेयर से ये इक्वल है। बट एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इक्वल टू 4 कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। दिस इज द solution. Putting the value of 6 here and we get this. This is the proof of this theorem. This theorem is very important. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary. This is the very important theorem. Every student clearly understand this theorem, because here 1.1 we discussing here 1.1। एक बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए। जिस तरीके से समझाने की कोशिश किया जा रहा है, एक बात मैंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट अगर न्यू है इस वीडियोस पे तो उसे नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो नहीं जानता कि ट्रांसवर्सल क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है। In previous lecture we have already discussed about this topic। एक बात को डेफिनेशन में मैंने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले आप उस लेक्चर को पढ़िए, उसको समझिए और डेफिनेशन को लिखिए और दिमाग में रखिए, तब ये थियरम आप कर पाएंगे, तब जाकर के आप ये थियरम कर पाएंगे। एक बात को आपको समझना होगा। ये थियरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये थियरम एग्ज़ामिनेशन में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, और पेपर में आपको एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो ऐसे ही थियरम पूछे जाएंगे और आपको इसका सॉल्यूशन यानी प्रूफ देना पड़ेगा। एक बात को समझिए और कॉपी पे नोट करिए। नेक्स्ट थियरम इज हियर। Next theorem is here. If a transversal intersect intersects two
पैरेलल लाइंस then each pair of consecutive if a transversal intersect two parallel lines this theorem is already proved. Here is theorem. If a transversal intersect two line, not parallel. Here is parallel ना, बस here is two lines making a pair of alternate interior angle angles equal, then two lines are parallel, then the two lines are parallel. This theorem is converse of theorem 1. Now we have the name of 1. This theorem is 2 and this theorem is 3. This theorem is 3. This is the converse of theorem 1. ये theorem 1 का उल्टा है. देखिए इस स्टेटमेंट को समझते हैं. If a transversal intersect two lines making a pair of alternate interior angles equal, then the two lines are parallel. फर्स्ट थ्योरम में कहा गया था कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, वहाँ क्या कहा गया था, टू पैरेलल लाइंस, देन फॉर्म द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. वहाँ कहा जा रहा था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती है. ये थियरम फर्स्ट में कहा गया था. थियरम सेकंड में कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइन किसी दो लाइन को कट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है. इस तरह से कट करता है कि इक्वल होता है, तब वो जो दो लाइन है वो पैरेलल होगा. दो लाइन है वो पैरेलल होगा. थ्योरम फर्स्ट में ऑलरेडी पैरेलल लाइंस ले लिया गया था और एंगल को इक्वल दिखाया जा रहा था. थ्योरम सेकंड में एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है, कहा जा रहा है कि जो दो लाइन है वो पैरेलल है. यानी थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है, यानी उल्टा है थ्योरम थर्ड. ओके, नाउ वी हैव प्रूफ. तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा फिगर बनाते हैं.
this is the figure. One line is cut by two lines. This line is A, this is B, this is C, and this is D. This is D. This is D. This line is T. This line is T. Now here making angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the figure of this theorem. This is the figure of this theorem. Now proof. At first given क्या given है? A transversal T, a transversal T cuts two lines, AB and CD. At this is E and this is F. E and F. A transversal, ये T cut two lines AB and CD at a point E and F. दो पॉइंट पे कट करती है E and F रिस्पेक्टिवली. सच दैट, इस तरह से, सच दैट किस तरह से कह रहा है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो दो लाइंस को हमने इंटरसेक्ट करा दिया. मेकिंग ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, इस तरह से इसके जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होगा, ऐसा थ्योरम में दिया है. तो हम भी लिख दें यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. जैसा दिया था वैसा लिख दिया था थ्योरम में कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के. दिस इज गिवन इन दिस थ्योरम. नाउ प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? इक्वल. देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, यही प्रूफ करना है. देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू प्रूव AB पैरेलल टू CD. ये प्रूफ करना है हमें, AB पैरेलल टू CD. समझ आई बात? थ्योरम में जो दिया था मैंने 1 by 1 लिखा, और क्या प्रूफ करना है यहाँ पे मैंने लिखा AB पैरेलल टू CD. AB पैरेलल टू CD. तो प्रूफ करते हैं. एक बार थ्योरम आप अच्छे से देखिए, समझिए क्या क्या दिया है थ्योरम में और हम क्या कर रहे हैं. नोट डाउन इन योर कॉपी दिस थ्योरम. इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines making a pair of alternate
interior angles equal, then the two lines are parallel. This is the related figure देखिए. And what is given we have already discussed in this proof. A transversal T cuts two lines AB and CD at E and F respectively, such that angle 3 equal to angle 5 and angle 4 equal to angle 6, which is alternate interior ना. तो प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD. टू प्रूफ AB पैरेलल टू CD we have क्या दिख रहा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 जो गिवन है ना, गिवन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1. कैसे ये हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. वी हैव टू रिटेन हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल, द प्लेस ऑफ 3 इक्वल टू 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. But these are corresponding angle, but these are corresponding angle. Therefore AB parallel to CD. कैसे, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. वी हैव at first when we start the parallel lines, then at first we have discussed about the axiom of this theorem. We have already discussed what is corresponding angle axiom. वहाँ पे दोनों बात सही था. वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, वहाँ पे ये कहा था कि एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, ये कहा गया था. यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है. फिर उल्टा भी उस बात को सही कहा गया था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइन को कट करती है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है तो वो लाइन पैरेलल होती है. ये दोनों ही एक्सियम पहले ही दिन जब हम पैरेलल लाइंस शुरू किए थे उसी दिन हमने इसको डिस्कशन किया था और बताया था कि जो एक्सियम होते हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है. व्हाट इज़ एक्सियम, व्हाट इज़ थियरम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस थियरम्स, प्रीवियस लेक्चर्स. तो वहाँ ये कहा गया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो जो दो लाइन है वो पैरेलल होगा. ये उस एक्सियम में बताया गया था. वही एक्सियम का यहाँ यूज किया गया है. यहाँ हम देख रहे हैं कि दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, यानी
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं कि इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल रहा है तो उस एक्सियम का यूज हम कर दें कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दिया गया लाइन पैरेलल होगा। वही चीज़ हम यहाँ यूज कर दिए कि एंगल इक्वल आ गया सॉल्व करने के बाद, तो हम कह रहे हैं थ्योरम से कि वो जो लाइन है ए बी और सी डी वो पैरेलल है। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। These three theorems is very important. You keenly solve this in your copy and try to understand. If you don't understand, to ask me about it. Because we have very clearly discussing here, so the student asking to me. And try to understand, keep in your mind. Thank you.